कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? 73 सर। 73. 73. चलिए बाकी लोग जुड़ते हैं, तब तक हम थोड़ा शुरू करते हैं. Let us have very quick and brief revision that what we have done so far. I have initiated with ensuring your knowledge regarding the difference between subject and discipline, and then I have started the topic nature of mathematics. We have seen that the nature of mathematics is largely deductive. It consists continuity among the topics, and it has correlation with some other subjects also. That also we have seen and discussed some simple examples. And due to this type of very nature, students have to be very concentrated while working on this, and it requires single-minded concentration. This is the words which I have used in my PPT, and that further increase the responsibility of a teacher, a mathematics teacher. Every time he has to ensure that students are having previous knowledge or not. If not, he has to do some additional task sometimes before entering to the new topic. Then we have discussed the place of mathematics in school curriculum in my last class. We have taken support of certain documents developed by national commissions and committees, and what they have suggested for mathematics that we have seen. Now today we will discuss regarding the correlation of mathematics. This is also very important topic, because being a teacher, we have to understand this important aspect, that how the different subjects are interrelated with each other. If we have this kind of insight, if we are able to see that yes, different subjects are related with each other, then only we can understand the importance of each and every subject for the holistic development of a learner. यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक शिक्षक का एक आउटलुक थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए. वो ये बात देख पाना चाहिए या समझ पाना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है. If we think very quickly, we know that mathematics can develop mathematical skills. In the same way, science can develop certain scientific skills for experimentation. In the same way, language can develop the language related skills. We can
we can communicate very effectively if we have proficiency in language. किसी भी भाषा पर हमारा अगर प्रभुत्व होता है, मास्टरी होती है, तो इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। हम अच्छी तरह से हमारी बात किसी के सामने रख पाते हैं, समझा सकते हैं very effectively, and that is a skill of effective communication. ये एक important life skill है कि those who can communicate effectively, they can be good teachers. और जो अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, बार बार आप एक ही बात बोले जा रहे हो और बच्चे समझ नहीं पा रहे, उसका कभी कभी मतलब ये निकलता है that you are not having effective communication skill. आप जो कहना या समझाना चाहते हो वो बच्चे नहीं समझ पा रहे. It means there are certain hindrances maybe from your side. If it is from your side, then we can say that still we have to work hard. शुरू में जब आपका इनॉग्रेशन हुआ था, हमने बताया था, बहुत सारे हमारे टीचर एजुकेटर्स ने ये बात आपको बोली थी कि टीचर बनना आसान नहीं है. आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, बीएड कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे टीचर बन पाओगे. इनफैक्ट यू विल बी टैग्ड एज ए ट्रेन्ड टीचर. आपको एक टैग लग जाएगा कि आप अनट्रेन्ड नहीं हो, ट्रेन्ड टीचर हो. एंड एज पर द provisions under Right to Education Act 2009, a trained teacher only can be given a job. अभी ये आरटीई में ऐसा प्रोविजन कर दिया है, कंपलसरी, मैंडेटरी, कि अनट्रेन्ड टीचर को अभी नौकरियां नहीं मिलेगी. इट मीन्स यू हैव a license in fact to work as a teacher. And when we say you have a license, it means now you are a professional teacher. Now it is our responsibility how to become more and more professional in our work. But at the same time, we are not professionals like doctors and advocates. One main important aspect associated with our professionalism is service to mankind. हमें समाज में एक सेवा के भाव से ये प्रोफेशन को स्वीकारना है, नहीं कि उसका एक कॉमर्शियल वैल्यू ही हो हमारे दिमाग में कि हम बहुत सारे पैसे का उपार्जन करें, बहुत सारे पैसे कमाएं. हाँ, you get salary, that is a part of your life and that is a part of your profession, but service to mankind is the motto of teaching profession. तो ये बहुत अहम चीज होती है. हर प्रोफेशन में ये चीज होने के बावजूद भी लोग इसको नजरअंदाज करते हैं. हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग गुड सिटीजन्स, वी आर प्रिपेयरिंग अवर नेक्स्ट जनरेशंस फॉर द नेशन बिल्डिंग, and that's why importance of a teacher is maximum compared to other professionals. Now let us come to the point. I hope almost all have joined so far. कितने लोग हुए अभी ज्वाइन? 91. ठीक है, तो अभी हम थोड़ा टॉपिक पर ही बात करना शुरू करें. So today I want to discuss or explain on the topic correlation of mathematics.
Would you be able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब तक मेरे आगे के पीपीटी आप सबको मिल गए होंगे। हाँ सर। अभी दिस इज माय थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर दिस यूनिट, द कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कोरिलेशन, कोरिलेशन का एक अर्थ होता है सहसंबंध, सहसंबंध। We can say that there is correlation in between wife and husband. एक वाइफ और एक हस्बैंड एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर है, ये हम जानते हैं। हमारे माता पिता का एग्जाम्पल ले लीजिए, या भाई बहन का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप वाले कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, and you can imagine that what type of correlationship exists in the society as far as the relationship is concerned. In case of our subject, there is also a kind of relationship among the subjects. एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ, एक सब्जेक्ट का दूसरे और सब्जेक्ट के साथ, इस प्रकार के एक रिलेशनशिप होता है। तो उसको हमें समझना है आज। And with reference to certain parameters, or you can say dimensions, we will try to elaborate this thing. इसका कनेक्शन बहुत सारी बातों से है। This is an overview. When we say that mathematics is a science of all sciences and art of all arts, it is said by some mathematicians. अपने अपने सब्जेक्ट पर हर किसी को एक प्राउड फील करते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है। But at the same time, we should understand that every subject contribute fully or partially for the development of the students. जैसे मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उससे बच्चों में क्या डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज कैन वेरी वेल प्रोवाइड नॉलेज and understanding about values, about life skills. It provides understanding about how to live our life very meaningfully. क्योंकि लैंग्वेज के हर लेसन में ऐसी ऐसी बातें भरी पड़ी है। लैंग्वेज में ऑनेस्टी पर बेस्ड कोई लेसन होता है। सो कोई एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसमें उसका केंद्रवर्ती विचार होता है ऑनेस्टी एज ए क्वालिटी, एज ए वर्च्यू, प्रामाणिकता। तो पूरा लेसन पढ़ाने के बाद टीचर उस बात पर बार बार फोकस करता रहता है कि इसमें से आपको क्या सीखना है। एंड दिस इज हाउ ए लैंग्वेज कैन डेवलप सर्टेन क्वालिटीज, डेवलप सर्टेन वैल्यूज। शाश्वत मूल्य, शाश्वत यानी वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। सत्य, अहिंसा, ये शाश्वत मूल्य है, सब अनादिकाल से चले आ रहे हैं और उसका महत्व आज भी है। हर जगह पे महत्व है उसका। अगर मूल्यों की बात छोड़ दे तो देयर आर सर्टेन स्किल्स, देयर आर सर्टेन लाइफ स्किल्स टू लिव आवर लाइफ इन अ बेटर वे। दैट ऑल्सो वी लर्न फ्रॉम आवर लेसन्स ऑफ लैंग्वेजेस। From mathematics, let me say that it develops precision, it develops accuracy among us. हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक एक्यूरेसी धीरे धीरे हम में डेवलप होती है और प्रिसीजन होता है, चौकसाई। A mathematics person can very precisely tells his
views compared to other persons. लैंग्वेज वाले होते हैं वो थोड़ा बात को खींच खींच के लंबी करके बोल सकते हैं, उनके पास लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी है, इसलिए they can elaborate the things in a better way, those who are language proficient. But a person from mathematics can tell his views just in very few words. That is the quality, and that also requires somewhere when you are saying your thoughts very effectively. कुछ गिने चुने शब्दों में ही अपनी बात को इफेक्टिवली किसी के सामने पेश करना, रखना, इट इज एन आर्ट. So here the important thing is to establish a holistic view of knowledge. किसका नॉलेज? हमारा नॉलेज. We have to develop this holistic view. हमें पूर्ण रूप में देखना है उसको, कि हर सब्जेक्ट का एक महत्व होता है और हर सब्जेक्ट को आप किसी एक माला के मोती की तरह देख सकते हो. अगर एक मोती उसमें से निकल गया तो उस नॉलेज की ब्यूटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ जाएगी. हम इतने सारे सब्जेक्ट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? बिकॉज वी हैव दैट holistic view, we have that understanding and knowledge that every subject contribute fully or partially in the development of the students. हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू कभी बच्चे में नहीं आते. दे कैन डेवलप देयर हेल्थ. क्योंकि we know that Gandhi ji has talked about the education of 3H. 3H आपने सुना है? गांधी जी ने 3H के एजुकेशन की बात कही है. कौन से होंगे ये 3H? H H H, 3 प्रकार के H से हेड एंड हार्ट. हेड, हैंड एंड हार्ट. इसका कनेक्शन सीधा कहीं ना कहीं हमारे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर पड़ता है. हेड यानी इंटेलेक्ट, इट हैज कनेक्शन विथ कॉग्निटिव डोमेन, बौद्धिक पासु. हार्ट हैज कनेक्शन विथ आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पासु. And the third is the hand. Hand means कुछ परफॉर्म करना है, कुछ स्किलफुली कुछ यूज करना है, कुछ साधन का उपयोग करना है. So there are some different performance skills are associated. Hand, psychomotor domain, क्रियात्मक पासु. So these 3 domains are talked by our Rashtrapita Mahatma Gandhi, that if we successfully educate our children focusing on 3H, we will ensure the holistic development of a learner. Here we can add one more H, that is health. क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. इफ योर हेल्थ इज गुड, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन परफॉर्म वेल, यू कैन फील वेल. So we can add this 4th H also, which is added in life skills education. Life skills education emphasizes on education of 4H. What is this 4th H? फोर्थ H कौन सा ऐड किया मैंने? हेल्थ. समझ में आता है ना? तो ये लाइफ स्किल्स एजुकेशन में ये चौथा H ऐड करने की बात कही गई है.
If we want to focus on education of all these H, we have to teach all subjects, because every subject is important. And once we have that kind of view, if we have that kind of approach which is known as multidisciplinary approach, हमें हर discipline को साथ में लेकर चलना है, that is multidisciplinary approach. It will contribute more rather compared to focusing on one discipline only. हायर एजुकेशन में एक ही डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में इफ यू फोकस ऑन multidisciplinary approach, our focus is this, and that's why we have introduced more and more school subjects, so that we can ensure the holistic development of the learners, all development of the learners, and it motivates the students to take interest in all subjects. हमें याद होगा, आपको आप अपने खुद के बारे में सोचेंगे तो आपको याद होगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद रहे होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको कम पसंद होंगे, ये होता है. बट एट द सेम टाइम, इवन इफ you do not like that particular subject, that has contributed partially in your development. कुछ ना कुछ डेवलप जरूर हुआ है उससे. So this is an overview which emphasizes on developing or establishing holistic view or knowledge or understanding about multidisciplinary approach, about understanding the importance of all subjects at school level, so that we can develop a learner focusing on all 4 H. Physical education and yoga, ऐसे सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस होते हैं. फिजिकल एजुकेशन एंड योग. क्यों? क्योंकि योग से मन की शांति मिलती है. स्पिरिचुअली हम देखें तो उससे हम आत्मा का परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है. एंड द डेफिनेशन गिवन ऑफ योग, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब आप जो भी कार्य स्किलफुली करते हो वो योग है. आपके किसी भी छोटे से छोटे कार्य में आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी क्षमता, पूरे कौशल्य को आप निचोड़ के रख देते हो, तो वो योग है. दिस इज ऑल्सो ए वंडरफुल डेफिनेशन. कोई भी कार्य अपनी पूरी क्षमता और कौशल के साथ करना, वो अपने आप में योग है. और ये हर प्रकार की क्षमता हमें अलग अलग सब्जेक्ट से मिलती है. दिस इज व्हाट एन ओवरव्यू सेज. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन इन मैथमेटिक्स. In fact, in different subjects there are factors of motivation. आपको याद है, अगर आप जब छोटे थे पढ़ने के लिए आपको बार बार कहा जाता था मम्मी पापा के द्वारा और नहीं बैठते तो आपको मोटिवेशन के तौर पर कुछ कहा जाता था. चलो इतना होमवर्क कर लो, मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, या इतना होमवर्क कर लो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा. These are all basic factors of motivation. So in the learning, in the process of teaching and learning, there is importance of factors of motivation. And these factors of motivation can be seen differently. There are certain physical factors जो physical यानी दिखाई देते हैं, जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली, लाइक प्राइज, प्रेज, प्रशंसा करते हैं हम किसी को. एंड हेंस इन टीचिंग देयर इज ए स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. आप प्रशंसा करिए बच्चों की, बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे. सो आपकी जो प्रशंसा है, यू सिंपली यूज द वर्ड वेरी गुड, नाइस, excellent.
They are the words for motivation. They will motivate the learners to respond more. Medals. हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले ये बोलते हैं कि अगर आप ये काम कर रहे हो उसके लिए एक स्पेशल मेडल दिया जाता है. आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, यू विल गेट ए गोल्ड मेडल. सो इट्स अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. यूजिंग AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्राव्य साधन, ये भी एक मोटिवेशन है. आप सिंपल बोलते जाते हो, लेक्चर मेथड से पढ़ाते हो, sometimes it may not motivate the learners to learn. But if you show an experiment, if you show a film, if you administer a test, if you conduct an activity, if you give them a puzzle, if you tell them a story, if you show them certain models for learning, तो ये जिस प्रकार से हम पढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, they also be the physical factors of motivation. There are certain factors emerged through the educational objectives. Factors emerged through the educational objectives. What can be these factors? Can anybody say? ऑब्जेक्टिव से इमर्ज होने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं? Let me tell one example. We all have experienced this type of situation in our life sometime. Suppose you have tried a lot to solve any example, but you are unable to solve. Many times it may have happened, but sometimes all of a sudden you will be able to solve that example. So at that time, what will be the situation of your mind? Yes, I can do it. Yes, I can do it. And that's a kind of motivation for you for doing the similar task again and again. सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तो एक टीचर का और या मेरा यही था कि बच्चे ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सके. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव. इनिशियली स्टूडेंट्स won't be able to calculate on their own, but suppose a teacher provides some hint, he will give some guidance, and after that he will be able to solve that example and he will be motivated. Now a motivated person can do many things. He will motivate others. He will try to motivate himself more and more. He will move fast. तो ये एक इनबिल्ट मोटिवेशन होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रादर इन आवर जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. मैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स किसको कहता हूं या उसको कैसे समझा जाता है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स, there are two types of broad types of objective. Number one is general objective. जनरल यानी जो लंबे अरसे के बाद वो अचीव हो सकते हैं. जैसे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल.
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल बच्चों में डेवलप होंगी. So it may or may not be possible just within a period. It may take long time also. कभी कभी 2 साल 5 साल के बाद ये स्किल डेवलप होती है बच्चों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. So these are some long term objectives. They may be achieved after some time or after years. Another objective, students will develop interest in learning mathematics. समझ में आता है ना? बच्चों में गणित सीखने की रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा. तो ये आज भी हो सकता है, सालों के बाद भी हो सकता है. शुरू में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समझ शक्ति बढ़ती है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, अपना इंटरेस्ट बढ़ता है, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए. सो बिकॉज ऑफ सर्टेन मोटिवेटिंग फैक्टर्स you may develop your interest after some years and mathematics will become your favorite subject. Students will be able to develop certain mathematical skills. ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ. And there are some there is another type is specific objective. Specific, ये आपको मेथड में तो पढ़ना ही है, ये तो अभी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसका जिक्र है यहाँ पे. स्पेसिफिक मीन्स इट इज बेस्ड ऑन कंटेंट, टॉपिक. जो टॉपिक आप पढ़ाते हो उसके ऊपर ही बनाया गया ऑब्जेक्टिव है. एज फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म triangle. Students will be able to tell the sides and angles of a given triangle. तो यहाँ पे कोई लंबे अरसे के बाद अचीव करने वाली बात नहीं है. These are short term objectives. जैसे आपने एक क्लास में ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, so after that you can check that whether the objectives have been achieved or not. You may be able to see that many students will be able to tell the definition of triangle. It means specific objectives are simply based on content which you are teaching in a period. और जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं. कुछ क्वालिटीज डेवलप करने की बात है, कुछ स्किल्स डेवलप करने की बात है, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात है. वो लंबे अरसे में कभी कभी डेवलप होता है. बट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स सम मोटिवेटिंग फैक्टर्स विल बी इमर्ज्ड. आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इस प्रकार की खुशी मिलती है, ये खुशी शब्द बोलता हूं, हैप्पीनेस, जॉय, दैट इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर. That inner joy will further encourage you to solve more and more examples. ये इनर जॉय का भी लेवल अलग अलग होता है. कुछ लोग तो घर में कोई नहीं हो तो नाचना शुरू कर देते हैं. They feel that yes, I should dance because earlier he was unable to solve the examples and now he succeeded. And that has created lot of joy, inner joy, compelled a person to dance with zeal and enthusiasm. Motivation through puzzle solving. शुरू में पजल में थोड़ी रुचि नहीं रहती है हमें, ऐसा होता है क्या करें, इसमें दिमाग चलता नहीं है, कैसे आगे बढ़े. But once you solve that puzzle, you will be motivated. एक ये कलर का स्क्वायर आता है ना, छोटे छोटे बच्चे उससे खेलते हैं. एक साइड पर पूरे एक कलर का सब स्क्वायर घुमा घुमा के लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर पजल.
Rubik's cube. कौन सा क्यूब? Sir, dice. हाँ, रूबिक क्यूब. So in fact it is an example of puzzle, and with your continuous effort, if you will successful, it will be a motivation. So some people get motivation through puzzle solving. कुछ लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं या लैंग्वेज वाले नहीं भी होते हैं, तो न्यूज़पेपर में हर रोज जो आते हैं ना, वो वर्ड फॉर्मेशन का पजल, क्रॉसवर्ड भरना शुरू कर दे न्यूज़पेपर में. जब तक खत्म नहीं करते तब तक न्यूज़पेपर छोड़ते नहीं है वो. और नहीं आता है दूसरों को इमीडिएटली पूछेंगे बाजू में बैठे उसको. सो some people very easily get motivation through puzzle solving. Then motivation through mathematical activities. There are recreation activities in every subject. हर एक सब्जेक्ट में ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमें मोटिवेट करती है, वो सब्जेक्ट के प्रति हमें सीखने के प्रति प्रेरित करती है. मैथ्स में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे पजल सॉल्विंग इज एन एक्टिविटी. कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, उस गेम्स में मैथमेटिक और लॉजिक इज द हिडन पार्ट. इन स्कूल देयर आर मैथमेटिक्स क्लब, and under mathematics club they organize different activities like celebration of National Mathematics Day, then participation in science and maths fair. साइंस एंड मैथ्स फेयर आजकल साथ में ऐसे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इन विच यू कैन पुट योर प्रोजेक्ट ऑफ मैथ्स एंड साइंस एंड यू can win the prizes at district level, at state level, at national level. And the last and important point on which we would like to discuss, motivation through correlation. Correlation से भी motivation मिलता है. If you are able to see the correlation of mathematics with other subject, it will motivate you. आपको ये लगता है कि हाँ, मैथ्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखो. It will motivate you to learn mathematics. आपको लैंग्वेज में भी कहीं मैथ्स का यूज दिखाई देता है तो आपको ये लगता है कि बिना मैथ्स का तो कुछ नहीं चलने वाला. We have to learn maths if you want to learn some grammatical parts in language also, because we can see the correlation of maths with language, maths with history, maths and music, maths and geography, like that. So this correlationship can be seen in different ways. The last sentence written here, mutual relationship of different subjects is known as correlation. Mutual relationship, एक दूसरे पर निर्भर है हर सब्जेक्ट, that is correlation. साइंस मैथ्स पर निर्भर है, that is correlation. One more interesting thing mentioned here is teaching can be more effective with reference to principle of transfer of training. Principle of transfer of training. Holding in 1965 says that transfer of training occurs whenever
the effects of prior learning influence the performance of a later activity. That we can very well see in mathematics. कि आप जो पहले सीख कर आए हो उसकी इम्पैक्ट आप अभी जो सीखने वाले हो उसके ऊपर है. It will affect your performance which you are learning now. And that is principle of transfer of training. It was explained by Holding, D.H. Holding. And that is a correlation. Correlation within the subject. मैथ्स में मैंने आपको बताया कि आप आज जो प्रपोजिशन सीखे हो वो प्रपोजिशन का यूज आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने में उसको करोगे आप. सो दैट इज द correlation, that the work which you have done earlier, it is still useful to you to show your best performance in the upcoming activities. This is transfer of training. इसमें एक शब्द का यूज होता है विकासात्मक आवर्तन. किसी एक कंटेंट एरिया का, किसी एक टॉपिक का विकासात्मक आवर्तन हमें देखने को मिलता है. मीन्स in developmental way we can say that it is now having more difficulty value. Number system introduced from first standard and gradually it is developed. तो ये विकासात्मक आवर्तन है. आवर्तन यानी उसकी पुनरावृत्ति होनी, वो बात फिर से दोबारा आनी. एक बार नंबर सिस्टम पढ़ चुके थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अब दूसरे स्टैंडर्ड में भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, बट उसका आवर्तन है नंबर सिस्टम का. अभी उसमें कुछ नई चीज आगे हम सीख रहे हैं. अभी कनेक्टिविटी इज देयर, कंटिन्यूटी इज देयर, बट द रेज्ड डिफिकल्टी लेवल आल्सो कैन बी सीन. And this correlation creates interest among the learners. इससे इंटरेस्ट बना रहता है हमारा जब कोरिलेशन मिलता है. तो मैथ्स में ज्यादातर चैप्टर्स ऐसे ही मिलेंगे आपको जिसमें कहीं ना कहीं कोरिलेशन देखने को मिलेगा. जहां पर कोरिलेशन नहीं है वहां कनेक्टिविटी नहीं होती है. एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है. टॉपिक ही अलग होता है, कंटेंट कैटेगरीज भी अलग अलग होती है. ये समझ में आता है? कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए आप. एनीथिंग टू आस्क? नो सर. समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. टाइम क्या हुआ है? Yes, sir. So it's 1:25. 5 minutes left. हमें कितने बजे तक लेना है? 1:30, sir. हाँ? 1:30, sir. अच्छा, अभी 5 मिनट है. Yes, sir. Now let us very briefly understand that what are the different types of correlation which we have to understand. A correlation can be seen differently. Correlation of mathematics with other subjects. With other subject means with science, with history, with music, with language. इस तरह से एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, दूसरे अदर सब्जेक्ट्स है, उसके साथ उनका कुछ सहसंबंध हो. दूसरा है कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ इट्स ब्रांचेस. उसके और बहुत सारी ब्रांचेस हैं. अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथ्स में उसकी अलग अलग ब्रांचेस आती है. मैथमेटिक्स में कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस. सो इतनी जितनी अलग अलग ब्रांचेस देखने को मिलती है मैथ्स में.
तो हर एक ब्रांच के साथ उनका कुछ संबंध होता है. Then correlation among the different topics in the same branch. If you consider any one branch of mathematics, you will see that there are different topics and they are related with each other. एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेटेड है. As for example, when we talk about point, vertices, the same thing will be repeated in line segment, in triangle, in arrow. Point is a concept, and this concept will be again focused or used in some other different topics in the same branch. Mathematics में ही है वो. Mathematics and the factors affecting everyday life. So mathematics का correlation डे टू डे लाइफ में कहाँ पे है, उनका कोरिलेशन कहाँ पे है. यहाँ पे हर रोज हम मैथ्स को देखते हैं, मैथ्स का यूज करते हैं. Sir, drinking of 11 to 12 glass of water is also mathematics. So repeat it, please. The drinking of 11 to 12 glass of water is Yes. also kind of mathematics. Yes. We calculate. मार्केट करना. सर Yes. मार्केट Sir, in cooking as well. में भी To maintain कैलकुलेशन our है. bank account, है ना. हम आए दिन वो देखते हैं, उसको अपडेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इस महीने में कितना खर्चा हुआ. Yes sir, फिर कुकिंग में भी कितने कुकिंग में भी इंग्रेडिएंट्स. एक मेजरमेंट हमारे होते हैं कि इसमें चीनी है तो इतनी चम्मच डालनी है या इतने कप चीनी डालनी है. कुछ क्वांटिटी में बनाना है तो उसमें भी 1 किलो चीनी डालनी है. लेडीज ये उसका कैलकुलेशन लिख के रखते हैं या उनको दिमाग में होता है कि टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ फूड इन दिस क्वांटिटी, हाउ मेनी थिंग्स एंड हाउ मच क्वांटिटी विल बी रिक्वायर्ड. और वो क्वांटिटी के हिसाब से वो जो करते हैं एकदम परफेक्शन आता है उसमें. So mathematical factors are affecting factors in our day-to-day life. So here I have focused on 4 different types of correlation. That is सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का अपनी ही कुछ दूसरी अलग अलग ब्रांचेस है उसके साथ. जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये ब्रांचेस है. उसी तरह मैथ्स की ब्रांचेस है, उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस में मैथ्स का रिलेशन कहाँ पे है. So now onwards we will discuss all these things. Now based on this much information, try to recollect your own learning experiences कि मैथ्स का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे संबंध है. Where the correlationship can be seen of mathematics with other subjects. उसके एक एक एग्जाम्पल आप सोच के रखिए. नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. मैथ्स का अपनी ही ब्रांच के कुछ अलग अलग सब डिसिप्लिन है, उसके साथ मैथ्स कहाँ कनेक्टेड है, मैथ्स के एक टॉपिक और मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स में किस तरह से रिलेशनशिप है, एंड इन डे टू डे लाइफ हाउ मैथमेटिक्स इज कनेक्टेड. ठीक है. ओके सर. अब हम very shortly we will give you some practical work. जैसे ये आपका ये पूरा कोर्स है, उसका
3 क्रेडिट्स है। 3 क्रेडिट्स मीन्स 75 मार्क्स। ये पूरा कोर्स आपका इस सेमेस्टर में होगा, इसके 75 मार्क्स है। और उसमें उसको 60% एंड 40% में डिवाइड किया है। 60% आपका इंटरनल असेसमेंट होता है एंड 40% का आपका यूनिवर्सिटी असेसमेंट होता है। यूए बोलते हैं, यूनिवर्सिटी असेसमेंट, 40% ओनली। तो 40% का आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा सेमेस्टर एंड में। तो 75 का 40% कितना हो जाएगा? शायद 30% हो, 30 मार्क्स हो। 40% ऑफ 75 30 marks. 30. 0, ओके 30. है। Yes, sir. 30 marks. 30 marks. 30 बराबर ना। हाँ sir. 30 मार्क्स का आपका एक, हाँ सर। हाँ 30 मार्क्स का आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे अभी ये कोरोना के चलते अभी यूनिवर्सिटी की सभी एग्जाम ऑनलाइन होती है। सो यू विल हैव टू अपीयर इन द ऑनलाइन टर्म सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन फॉर 30 मार्क्स। ओनली फॉर दिस पेपर आई एम टॉकिंग, क्योंकि इसके टोटल 75 मार्क्स है। बाकी आउट ऑफ 75 अगर 30 मार्क्स निकल गए, बाकी कितने रहे? 45, 45. है ना। 45 में 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो हम आपको कुछ वर्क असाइन करेंगे अभी एक दो दिन में हम दे देंगे आपको। सो ये बेस्ड ऑन योर डिफरेंट डिसिप्लिन, क्योंकि इनमें कोई मैथ्स वाला है, कोई साइंस वाला है, कोई लैंग्वेज वाला है, आप सब अलग अलग डिसिप्लिन से हो। एंड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट देर आर different chapters related to different disciplines also, है ना। लैंग्वेज एज ए डिसिप्लिन, साइंस एज ए डिसिप्लिन, सोशल साइंस एज ए डिसिप्लिन, ऐसे चैप्टर्स है आपके सब। तो आपको कोई एक एक असाइनमेंट या प्रैक्टिकल वर्क आपको हम देंगे और उसका 25 मार्क है। अब उसमें आपको क्या देने वाला है वो हम आज थोड़ा डिस्कस करके, हम लोग जितने भी टीचर्स हम ये पढ़ाते हैं साथ में मिलके वो प्रैक्टिकल वर्क डिसाइड करेंगे आपको देने के लिए, जिसके 25 मार्क्स है। एंड रिमेनिंग अदर मार्क्स 30 मार्क्स तो वो सेमेस्टर एंड एग्जाम के हो गए, 25 ये हो गए। अभी कितने रहे? 30 20 50 20. 20 marks. 20. तो बाकी 20 मार्क का एक मिड टर्म सेमेस्टर एग्जाम होगा। मिड टर्म वो इंटरनल ही है। यहाँ पे वेरी क्लियरली आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, दैट 45 मार्क्स विल बी इंटरनल असेसमेंट एंड 30 मार्क्स ओनली फॉर यूनिवर्सिटी असेसमेंट। ये समझ में आई ना बात आपको? तो अभी आपको हम प्रैक्टिकल वर्क का काम देने वाले हैं बहुत जल्द, और वो आपको एक डेडलाइन देंगे, उसके टाइम में सबमिट करना है। उसके आधार पर आपको 25 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो 25 मार्क्स प्रैक्टिकल वर्क और असाइनमेंट, 20 मार्क मिड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मिड टर्म यानी बीच में 20 मार्क की एक एग्जाम, जितना भी पढ़ाया है उसकी एग्जाम ले लेंगे। फिर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन विल बी a part of university assessment and its total marks are 30। तो इस प्रकार से ये है आपका। चलो आज का काम यहाँ पे हम खत्म करते हैं। We will meet next time। अभी तो छुट्टी है, अभी 2-3 दिन छुट्टी है आपकी। सर 2-3 सर दिन वाइवा होगा फ्राइडे को Saturday. है सर सैटरडे भी छुट्टी सर है। कल ही है ना सिर्फ अभी छुट्टी। 3 दिन छुट्टी लगातार आ रही है, किसकी है क्या है कुछ पता नहीं है मुझे। हाँ? कल तो हमें क्रिसमस है। सिर्फ फ्राइडे बोला गया है सर। 25 26 27 को संडे आ गया ना। संडे। अरे सर। 26 सर। हाँ सर। 27 तारीख को 27 को संडे है। हाँ सर। अरे कल और परसों छुट्टी है। 26 को क्या है? 26 को क्यों छुट्टी है? हाँ हाँ? सर 26 को छुट्टी क्यों नहीं है। हॉलीडे है वैसा पूछ रहे हैं। सैटरडे है ना।
सैटरडे का है, लेकिन बट छुट्टी किसकी है? भारत की हॉलीडे होता है। सर हमारा वाइवा होगा क्या एंड में? नहीं, 26 चालू है। हाँ, we will कुछ meet on वाइवा होगा at 26th the end. now, okay? And before 26th, we will provide you the practical work. Its weightage is 25 marks, as I have told just now. ओके सर। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir.